ہمارے ساتھ مسلم پرسنل لا بورڈ کی ممبر اسما زہرا صاحبہ ہیں اور ابھی انہوں نے آل انڈیا مسلم ویمن ایسوسی ایشن کی شروعات کی ہے. تو میم آپ آلریڈی ممبر تھیں بورڈ کی، پھر اس کے بعد اس ایسوسی ایشن کی شروعات کرنے کا کیا مقصد تھا؟ دیکھیے ہمارے پاس حیدرآباد میں وی ہیو بین ورکنگ، ہم کام کرتے ہیں خواتین کی تعلیمی اور سماجی اور اس کے ساتھ ساتھ جو غربت کا خاتمہ ہے، پاورٹی ایشوز جو مسلم کمیونٹی پہ ہیں، تو ایک اوور آل ہمارا ایک ہولسٹک اپروچ ہے مسلم ویمن امپاورمنٹ کا. اور یہ کام ہمارا حیدرآباد میں تقریباً 2 دہائیوں سے 2 ڈیکیڈ سے جاری ہے. تو ہم جو ہے مسلم ویمن کو جہاں جہاں ہم دیکھے ہیں بہت سارے ایشوز کا پرابلم ہے، الٹریسی ہے، غربت ہے، شعور کی کمی ہے اور فائنینشلی بہت زیادہ وہ پچھڑے پن کا شکار ہیں. ہم نے دیکھا کہ مسلم کمیونٹی میں ٹیلنٹ ہے، پوٹینشیل ہے، جیسے ایجوکیٹڈ انٹلیکچوئل جو ویمن ہیں، پروفیسرز، ڈاکٹرز، ہر جگہ ہر اسٹیٹ میں یہ سب بہنوں نے آپس میں کافی ہمارے انٹلیکچوئل میٹنگز ہوئے جس میں ہم نے ڈسکس کیا کہ جو نئے دور کے چیلنجز ہیں، دا نیو پرابلمز دیٹ آر ایمرجنگ بیکاز آف دا گورنمنٹ، تو ہم کو اپنی کمیونٹی کو صحیح ڈائریکشن دینا بہت ضروری ہے. ایسا نہ ہو کہ یہ ہمارے یوتھ، ہماری ینگ گرلز ہوپ لیسنس میں چلے جائیں، ان کو چینلائز کیا جائے، ان کے حقوق کی بات کی جائے، ان کی ترقی کے لیے راستے کھولے جائیں. اور جو آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کا ایک اسٹیٹڈ آبجیکٹو ہے، دیٹ از اونلی دا مسلم پرسنل لا، دائرہ اس کا جو ہے، لیکن اوور آل ایک مسلم ویمن کی گروتھ اینڈ ڈیولپمنٹ کے لیے بہت سارے جگہوں پر ہم کو نمائندگی بھی کرنی پڑے گی اور ان کے حق کے لیے آواز بھی اٹھانا پڑے گا. جہاں جہاں مسلم عورتوں کے ساتھ ناانصافی ہو رہی ہے، ظلم زیادتی ہو رہی ہے، اسکولز، کالجز، یونیورسٹیز میں آپ ریپ کے، مرڈر کے، کلنگز کے، سیکشل ہراسمنٹ کے واقعات دیکھتے ہیں تو کوئی ان کے حق میں بولنے والا نہیں ہے. اس وقت بھی بہت سارے یوتھ جو CA/NRC میں سائلنٹ پیسفل پروٹیسٹ کی وجہ سے جیلوں میں ہیں، آپ کوئی تنظیم کو نہیں دیکھتے کہ ان کے حق کے لیے آواز اٹھائیں، ایکسیپٹ سنگولرلی کہ کچھ اسٹوڈنٹس کے لیے آواز اٹھائی جاتی ہے. تو یہ کمیونٹی کی بہت بڑی ذمہ داری ہے کہ اپنے یوتھ کے ایشوز کو سمجھیں. اور مادرز، ہوم میکرز، ڈاکٹرز، سب نے اپنی جگہ یہ محسوس کیا کہ وی شوڈ ڈو سم تھنگ فار دا کمیونٹی. آپ نے دیکھا کچھ سالوں میں اسلامو فوبیا بہت زیادہ بڑھ گیا. آپ ایز اے وومن آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیا وجہ رہی اس کے بڑھنے کی؟ دیکھیے اس کو فیول کیا گیا نا، اسلامو فوبیا کو فیول کیا گیا تھرو ملٹیپل نیوز چینلز اینڈ اسٹیٹمنٹس آف دا پیپل ان اتھارٹی. جو سرکار میں ہیں اگر وہ نیوٹرل بات کریں تو اتنا نہیں فلیئر اپ ہوتا تھا، لیکن جو سرکار میں ہے وہ بھی اسی طرح کی زبان کہہ رہے ہیں کہ کپڑوں سے پہچانو اس طرح. اور پھر اس کے ساتھ ساتھ کچھ لوگوں کو مامور کیا گیا، چاہے وہ ٹویٹر پہ ہو یا چینلز پہ ہو، کہ مستقل مسلم ایشوز کو دوہرا کے پریزنٹ کریں. تو ایک مسلمانوں کا امیج بنا دیا گیا ہے کہ ہم لوگ بہت خراب ہیں، ویلن ہیں اور ٹیررسٹ ہیں اور ہم پوری طرح سے اس دیش کی رولز کو فالو نہیں کرتے. تو ایک انوائرمنٹ بہت ہی زیادہ ٹاکسک اور پوائزنس انوائرمنٹ بنایا گیا ہے. تو ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ جو بھی ایشو پہ بات ہو رہی ہے اس کا کریکٹ پرسپیکٹو رکھیں. ایسا نہیں ہے، دیش میں کچھ سیکولر اور جو نیوٹرل ہندوز بھی ہیں جو سمجھنا چاہتے ہیں کہ آخر یہ مسئلہ کیا ہے. تو اس لحاظ سے ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ہم اپنے یوتھ کو ایک سیف انوائرمنٹ بھی پرووائڈ کریں. جو بھی نفرت ہے اس کو یعنی خاتمے کی کوشش ہو اس کی، وہ کس طرح سے کر سکتے ہیں کہ ہم اپنے طور پر بولنا شروع کریں، بات کرنا شروع کریں اور ہم ایک یعنی صحیح چیز رکھیں. جھوٹ جب بولا جائے، بہت دوہرا کے جھوٹ بولا جائے اور بڑے عہدوں پر جو رہ رہے ہیں وہ جھوٹ بولتے ہیں، تو سچ کسی کو تو بولنا پڑے گا. ایسے وقت میں جب ہم سچ بولیں گے تو پھر بات سب کے سامنے کھل کے آئے گی. تو یہ ہم کر ہی رہے تھے. اب ہم نے یہ جو پلیٹ فارم بنایا تو اس کے ذریعے ہمارے سارے ممبرز جو سچ ہے، حق ہے، انصاف کی بات ہے، وہ بات ہم لوگوں کے سامنے آخری سوال یہ ہے، جیسے مسلمانوں کے مدعوں کو لے کے میڈیا میں بہت غلط طریقے سے انہیں پریزنٹ کیا جاتا ہے، جیسے کہ مسلمان اپنی بیٹیوں کو، اپنے بیٹوں کو پڑھاتے نہیں ہیں، ان کے یہاں کئی شادیاں ہو جاتی ہیں، 4 شادیاں، 24 بچے، ایسے کر کے بنایا جاتا ہے، پلس 3 طلاق.
मतलब ट्रिपल तलाक देके, एक सिटिंग में ट्रिपल तलाक देके औरतों को घर से निकाल दिया जाता है, उनकी दुर्दशा हो जाती है। ये सब मुद्दे जब एक बड़े समाज के सामने पेश किए जाते हैं तो जाहिर सी बात है मुसलमानों की इमेज बहुत ज़्यादा बुरी बनती है, लेकिन इसके लिए कोई भी बड़े चेहरे, मुस्लिम्स के बड़े चेहरे, इसके लिए कोई आवाज़ नहीं उठाते, ना इस पर क्लेरिफिकेशन देते हैं, ना बड़े मीडिया पे आके इसके बारे में कोई सफाई देते हैं, ना बोलते हैं। तो इसको लेके आप क्या कहेंगे? ये बहुत बड़ी गलती है कि जो लोग ओहदों पे हैं, तंजीमों के ज़िम्मेदार हैं, जिनके पास ख़वातीन के शोबे हैं, उनकी औरतों को भी आगे बढ़ के बोलना चाहिए। ख़ास तौर पे जब मुद्दे औरतों से मुताल्लिक़ है बोलना चाहिए, और ये नहीं बोलना एक तरह से आप उसमें कॉम्प्लिसिट है वैसी बात होगी। तो खामोशी जो इख्तियार की जा रही है, साइलेंस इज़ समटाइम्स रियली सिनफुल, गुनाह हो जाता है जब खामोश बैठें। तो जो नहीं बोल रहे हैं हम उनसे भी अपील करेंगे कि वो लोग बोलें, और हम अपनी इस तंजीम, इस प्लेटफॉर्म से भी जो सही बात है कि अगर झूठे इल्ज़ामात मुस्लिम समाज पे लगाए जाएं, हमारी शरीयत को बदनाम किया जाए और हिजाब को बदनाम किया जाए, तो हम ज़रूर बात करेंगे, और हमको बात करने की ज़रूरत भी है आज के दौर में। जो ट्रिपल तलाक इन वन सिटिंग कह लीजिए, उस पर आपका क्या स्टैंड था? पहले भी देखिए, मानती हैं कि 3 तलाक देकर औरत को निकाल देना चाहिए, ये ठीक है, हो गई तलाक? नहीं, देखिए, तलाक का जो इशू था वो आउट ऑफ प्रोपोर्शन ब्लो कर दिया गया था। तलाक की शरह मुस्लिम कम्युनिटी में सबसे लीस्ट और मिनिमल है, और एक सिटिंग में 3 तलाक के बिल्कुल आप अक्रॉस इंडिया हम जब डाटा मालूम किए तो देयर वे वेरी फ्यू डॉक्यूमेंटेड केसेस, क्योंकि जो भी चीज़ें जाती हैं या तो मौलवी साहब के पास जाती हैं, दारुल ख़ज़ा जाती हैं, लेकिन वहाँ पर हर जगह हमने जो केसेस फॉलो किए हैं, देयर वेर एफर्ट्स फॉर रिकन्सिलिएशन। ऐसा नहीं कि ऑल ऑफ अ सडन एक बार किसी ने 3 तलाक दे दी हो, बल्कि लोगों ने कोशिश की उन दोनों के दरमियान जो झगड़े, मैरिटल डिस्प्यूट चल रहे हैं, तो ये गैर ज़रूरी हम पे थोपा गया इल्ज़ाम है। और जो चीज़ मैंने एक तरह से नापसंद की गई थी, तो कम्युनिटी में दैट वाज नॉट एग्जिस्टेंट। अब कुछ औरतें नापसंद था और एग्जिस्ट भी नहीं करता था, तो इसे मान लेने में क्या बुराई थी अगर 3 तलाक को बैन कर दिया जाए? जी देखिए, इसमें जो हमारी कम्युनिटी में प्लूरलिज्म है, एक मसलक में एक ही वक्त में 3 तलाक हो जाती है और एक मसलक में एक माना जाता है। तो जो डाइवर्सिटी है, तो एक प्लूरलिज्म है, तो हर मसलक, जिस मसलक के जो लोग हैं वो फॉलो करें। हमारा स्टैंड ये था कि ये हमारा इंटरनल इशू है, और मुस्लिम कम्युनिटी के जो इंटरनल मैटर्स हैं, क्या हम किसी और धर्म के इंटरनल मैटर्स में जाते हैं? तो जब हम किसी और के धर्म के किसी मैटर में नहीं जाते, तो हम नहीं चाहते कि दूसरे धर्म के लोग हमारे इंटरनल मैटर्स में, शरीयत की बारीकियों को जो नहीं समझ सकते, वो आके अगर इसकी फैसले करें, तस्वीर करें कि तलाक हो जाएगी, टीवी चैनल पे डिसाइड हो रहा है। तो ये सब चीज़ें क्या है, हमारे शरीयत के क़वानीन का मजाक उड़ाया गया, तमाशा किया गया। तो मुस्लिम औरतों ने बड़ी तादाद में आके कहा कि वी डोंट वांट एनी इंटरफियरेंस इन द मुस्लिम पर्सनल लॉ। हमारे मज़हब की जो चीज़ें, हमारे जो एक्सपर्ट्स हैं, जो उलमा हैं, वो उसकी डिसीशंस लेंगे। जैसे आप फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स के पास जाते हैं, मेडिकल एक्सपर्ट्स के पास जाते हैं, लीगल एक्सपर्ट्स के पास, तो जो चीज़ जिस रिलीजन की एक्सक्लूसिव है, उसको इस तरह से बदनाम नहीं करना चाहिए। तो हमारा स्टेटेड पोजीशन उस वक्त वही था, और बहुत सारी हमारी टीम की ख़वातीन का था कि दिस इज़ अ वेरी, यानी जो स्पेशलिस्ट है शरिया के, वही इस पर बात कर सकते हैं। हमारे साथ मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की मेंबर ममदूहा माजिद साहिबा मौजूद हैं। आपको इस एसोसिएशन के आगाज़ की ज़रूरत क्यों महसूस हुई? क्योंकि हम लोगों ने देखा कि काम, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का काम ज़रा हल्का पड़ गया है, तो हमने सोचा कि हम कर रहे हैं ये काम, तो इसको हम क्यों नहीं आगे बढ़ाएं। तो डॉक्टर अस्मा और कुछ और एजुकेटेड लेडीज़ बैठी, और हम लोगों ने डिसाइड किया कि एक हम ऑर्गेनाइजेशन कायम करें। और ये 1 साल पहले की बात है, 1 साल या 2 साल, आई डोंट रिमेंबर एग्जैक्टली, मगर हमने 1.5-2 साल पहले हमने उसको कायम किया। लेकिन उसका जब कायम किया गया तो वो हैदराबाद में किया गया, और दैट वाज 2 months बैक। हम लोगों ने कलकत्ता, बम्बई, पटना एंड महाराष्ट्र, हाँ, पूना, सब में, तो वहाँ से हम लोगों ने कुछ औरतें के जो मोस्टली एजुकेटेड लेडीज़ को हमने इकट्ठा किया, और जो इंटरेस्टेड थी कुछ फलाही काम करने के लिए और फलाही काम कर रही थी, तो उनको इकट्ठा किया गया, और वो 3 दिन का हमने वर्कशॉप रखा हैदराबाद में। उसके बाद हमने ये कायम किया
ऑल इंडिया मुस्लिम वुमेन्स एसोसिएशन। ये जो ऑर्गेनाइजेशन है आपकी, ये औरतों के लिए, मुस्लिम औरतों के लिए किस तरह से काम करेगी, उसके बारे में थोड़ा सा। इसमें तो ज़्यादातर एजुकेशन, फलाही कामों में उनकी भलाई के लिए, क्योंकि आजकल उनके बहुत सारे मसाइल हैं औरतों के, उनके मसाइल हल करना। हर एक अपने अपने तबके पे अपने, जैसे लेट से दिल्ली में पुरानी दिल्ली में बहुत सारे एरियाज़ हैं, बहुत सारी औरतें हैं जिनके मसाइल हैं, तो मैं और एक जीनत महताब हैं, हम उसको डील करते हैं। कलकत्ता में एक साहबा है हुदा, वो वहाँ कर रही हैं। इस तरह का हम करते हैं। उनके जो मसाइल हैं, एजुकेशन, घरेलू मसाइल और आपका उनकी अपलिफ्टमेंट के लिए, और मोस्टली एजुकेशन, उनके लिए हम काम करना चाहते हैं। अपॉलिटिकल है, हम पॉलिटिक्स में कहीं नहीं जा रहे हैं। मैम, हम देखते हैं कि जो मुस्लिम लोग हैं या पूरा समुदाय है, वो पढ़ाई को बहुत ज़्यादा तवज्जो नहीं देता, जिसकी वजह से हम कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा पीछे रह गए हैं। ये एक पुराना सवाल है आपका, जो अब नहीं चालू होगा। वजह ये है कि मैं आपको बताऊं, आजकल हमारा तबका, जो मुस्लिम कम्युनिटी है, वो बहुत पढ़ा लिखा हो रहा है। अभी हमारा जो कलकत्ता में, मैंने खुद मैं वहाँ थी, तो वहाँ इंजीनियर, डॉक्टर इंजीनियर, MBBS और एंटरप्रेन्योर्स, और सारे हिजाब में, और ऑल वेल एजुकेटेड। ऑफ कोर्स इंजीनियर, डॉक्टर्स एंड वो आर वेल एजुकेटेड, तो वो सारी लड़कियां हैं। तो आप सोचिए कि अब हम लोग आज से नहीं, बहुत सालों से हम आहिस्ता बढ़ रहे थे एजुकेशन वाइज। अब क्या हुआ, अभी जैसे मैंने कहा उनको, कि अब ये हुआ कि हमारे ही तबके के लोग, कुछ लोग घबरा गए कि मोस्टली लड़कियां एजुकेटेड हो रही हैं एंड उनको लड़का नहीं मिल रहा है, पढ़ा लिखा उसी के मुताबिक। ज़ाहिर अगर एक BA लड़की है तो मैट्रिकुलेट को तो नहीं जाएगी, तो इसी वजह से हमारा भी तबका उसमें फंस गया। और देखा जाए तो हम दूसरों को कहते हैं, हम खुद ही अपने को देखें तो हमारी लड़कियां माशाल्लाह इस आज 10-15 साल से दे हैव बिकम वेल एजुकेटेड और बाहर निकल रही हैं, कहीं MBA करने जा रही हैं। लेकिन हुआ क्या, ये एक तो हमारी ही तबका, दूसरा ये है कि हिजाब का एक मसला आ गया। अरे भैया, हिजाब तो पहले से था, आज तो नहीं था, आज की बात तो नहीं है। लेकिन वजह क्या है, हमारे तबके को भी खुशी हो रही होगी, मर्द तबका, मैं ऐसे ऑल्सो, ये मर्दों में एक खासियत है कि हमसे आगे कोई ना बढ़े। all men, not everyone, not of course your people, but mostly men don't want women to go up, and especially families. मैम, इसके पीछे क्या वजह लगती है? जिस तरह अगर आदमी नहीं चाहता है कि औरतें ज़्यादा ना पढ़े या उसे अपने ज़्यादा हुकूक ना पता चले, इसके पीछे क्या उनकी मानसिकता है, वो क्या सोच रखते हैं इसके पीछे? उनकी सोच यही है कि औरत हमसे आगे न बढ़े। लेकिन अब मैं आपको एक बात बताऊं, सही बात यह है कि अब वो मर्द भी समझ गया है कि अब ये औरत अगर एजुकेटेड होगी तो उसके बच्चे भी एजुकेटेड होंगे, वो मर्द भी समझ गया है। लेकिन कुछ बहुत कम तबका रह गया है जो मेरी नज़र में, बिकॉज आई हैव बीन वर्किंग एटलीस्ट 20 to 25 years, मुझे 25-30 साल हो गए सोशल वर्क और यही एजुकेशन वाइज कर रही हूँ। मुझे अब पता चला कि माशाल्लाह गाँव में भी लोग पढ़े लिखे हो गए। मैंने अभी बताया था कि मैं उड़ीसा की हूँ और उड़ीसा में एक बहुत रिमोट गांव की हूँ। वहाँ मैंने एक स्कूल अपने घर में, मेरे घर खाली पड़ा था, वहाँ स्कूल खोला। लोग हंसने लगे कि भैया ये खेती बाड़ी करने वालों के बच्चे को क्या, कौन ट्यूशन भी नहीं आएगा, वो कोई नहीं करे, तो देखा जाएगा। आज वही माशाल्लाह लड़कियां BEd है, इंजीनियर है, MBBS नहीं है, वो क्या कहते हैं, फिजियोथेरेपिस्ट है। आप सोचिए आज वहीं की लड़कियां। तो इसका ये नहीं है कि एजुकेशन वाइज वी आर गोइंग हाई, मगर हो रहा है क्या, लोग भी हमसे हिजाब का मसला ले आए। उसमें क्या है, सिर्फ एजुकेशन है, हिजाब इज़ अ बहाना, एक बहाना है हिजाब। एजुकेशन को रोकना है औरत लड़की का,
और वो लड़की अगर एजुकेट होगी तो अपने बच्चों को करेगी। इसीलिए ये सब बातें जो है ना ये पॉलिटिकल है। तो हम लड़के और लड़कियों, आजकल हम लड़कों को भी देख रहे हैं, हम लोग पेरेंट्स मीटिंग कराते हैं, पेरेंटिंग कैसे किया जाएगा वो भी हम क्लासेस लेते हैं। आप सोचिए हमारे ये एम्बुआ में हम पेरेंटिंग को कैसे बच्चों को आप डील करें, माँ को कहा जाता है, बाप को कहा जाता है, लड़के को कहा जाता है, लड़की, ये हम कर रहे हैं और वो करते हैं, हम लोग हर जगह कर रहे हैं। कि देखिए एक ज़माने में लड़कियों को के सामने कोई बात नहीं करती थी, ये शादी ब्याह का या ये सब का नहीं कर सकते। आजकल खुला आम सब हो रहा है। बच्चों से कैसे माँ बाप डील करें, वी आर टेलिंग देम, ये भी हम कर रहे हैं। ये एम्बुआ में क्या हो रहा है।